Good morning guys, and you know that very nice lesson we have started. Its name is Landscape of the Soul, and the story we have seen in that the difference between Chinese painting, European paintings, okay, and in the whole Asia continent they have traced on inner life and spirit, and only then they are used to draw the painting. So here the writer has explained the difference of this painting, and in Chinese painting you have seen that how the painter's criteria and ideology should be proved there, because we have seen about Wu Daozi that he has drawn the painting, and as soon as the cave's entrance opened, he entered in that cave, and the cave and the painting was vanished from the wall, and the painter hasn't returned then. So such type of examples or paintings drawn by in the Chinese art. So we are going to learn about the European art. What is the European art? What is the difference between Chinese and European art? So let's see. A Western painting reproduces an actual view. The European painter wants the beholders to look at a particular landscape from a specific angle. That is, exactly as he saw it. The Chinese painter does not choose a single viewpoint. His landscape is not a real one. One can enter it from any point and travel in it in a leisurely movement. Here students, I am going to I am reading the difference what the European painting is having. Here the Western painter, whatever the painting they are drawing, they are showing the actual view, that what we wanted. Okay, the painters are drawing the actual view, not they are drawing just imaginative and fantasies. A real one. Whatever the paintings the European painter are drawing is their real one, and the European painters are drawing a particular landscape. Means after viewing the landscape, you get the idea that from where you have to start to look at the painting and where it ends. पता चल रहा है कुछ? इसका मीनिंग ये है कि यूरोपियन पेंटर जो भी पेंटिंग ड्रॉ करते हैं उसका सपोज एग्जांपल ले लो, लैंडस्केप वो लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर वी कैन से आइडियोलॉजी होती है कि वो पेंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है. वैसे चाइनीज पेंटिंग में नहीं होता है. इन चाइनीज आर्ट यू कैन व्यू द पेंटिंग फ्रॉम एनी कॉर्नर और एट एनी पॉइंट and you can get or travel through such painting in your leisure time. हम लोगों को टाइम पास करना है. टाइम पास मीन्स व्हाट कि तुम लोग कहाँ से देख रहे हो पेंटिंग. चाइनीज पेंटिंग तुम लोग कहीं से भी देख सकते हो, उल्टी देखो सीधी देखो इक्वली दिखती है. ऐसा हम लोगों को यहाँ पे बोलने का मतलब ये है. बट यूरोपियन पेंटिंग हैज सच स्टार्टिंग एंड एंडिंग. यूरोपियन पेंटिंग को स्टार्टिंग भी होती है, एंडिंग भी होती है. वैसे चाइनीज पेंटिंग को होती नहीं है. तुम लोग उसको कौन से भी व्यू से देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, वो सेम ही लगेगी. वैसे यूरोपियन पेंटिंग का होता नहीं है. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन चाइनीज एंड यूरोपियन पेंटिंग्स. फिर आगे राइटर क्या बोल रहे हैं देखो. वन कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट एंड ट्रेवल इट इन ए लेशरली मूवमेंट. दिस इज मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल. Here one slowly opens one section of the painting, then rolls it up and moves on to the other. This adds a dimension of time. Also requires active participation of the viewer, a participation which is physical as well as mental. यहाँ पे ऐसा बताया है कि यूरोपियन पेंटिंग्स आर रियल एंड चाइनीज पेंटिंग आर इमेजिनेटिव. ओके, तो ये जो यूरोपियन पेंटिंग होता है इसका एक स्टार्ट होता है, जैसा मैंने तुम लोगों को बोला, जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, व्हाटएवर इट इज. हॉरिजॉन्टली देख सकते हो, वर्टिकली देख सकते हो. तो ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ये जो रेशो है ये हमको यूरोपियन पेंटिंग में देखने को मिलता है. यानी इसके अंदर यू कैन बी हैविंग अ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर. इट नीड्स, इसको क्या जरूरत होती है कि जो व्यूअर है उसका एक्चुअल इंटरेस्ट वो पूरी ध्यान से वो पेंटिंग देखेगा ही, बिकॉज द पेंटिंग आर रियलिस्टिक. ये जो पेंटिंग होती है वो बिल्कुल रियल होती है, इसमें कुछ भी फैंटेसी यूज की होती नहीं है. तो यहाँ पे राइटर ने बोला हुआ है कि हम लोगों को whenever we are going to view any painting, at that time our participation should be physically as well as mentally. हम लोग फिजिकली भी वहाँ पे होने चाहिए और मेंटली भी हमें वही दिख रहा है जो हम लोग देख रहे हैं. वैसे चाइनीज पेंटिंग में नहीं होता है. चाइनीज पेंटिंग में वी आर फिजिकली देयर बट मेंटली और माइंड इज रोमिंग हियर एंड देयर. जैसे वो
के ऊपर वो पेंटर चला जाता है, राजा कुछ वर्ड बोले इससे पहले पेंटिंग वनिश हो जाती है। दीज आर फैंटेसीज। ऐसे यूरोपियन पेंटिंग्स में होता नहीं है। जो तुम लोग देख रहे हो, जो तुम लोग तुम्हारे दिमाग में सोच रहे हो, वही तुमको वहां दिखेगा। दिस इज मीन्स वी कैन से दैट यूरोपियन पेंटिंग्स आर रियल एंड फिजिकली एंड मेंटली वी आर व्यूइंग द पेंटिंग वेरी नाइसली। हम लोग बिल्कुल ध्यान से, हमको समझ में भी आती है वो क्या है, उसमें कोई भी इमेजिनेशन यूज होता है नहीं है। फिर आगे राइटर बोल रहा है, देखो, द यूरोपियन पेंटर वांट्स द व्यूअर टू बोरो हिज आईज। यूरोपियन पेंटर का मेन इंटेंशन ये होता है कि वो व्यूअर को इतना पार्टिसिपेट करे पेंटिंग के अंदर कि उसका ध्यान कहीं पे डिस्ट्रैक्ट ना हो। मीन्स ही बोरोड द आईज ऑफ द व्यूअर। बोरोड, हमारी आंखें वो लोग ले लेते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वी आर टोटली पार्टिसिपेटेड इन द पेंटिंग। हम लोग पेंटिंग को ही देखते हैं, हमारा ध्यान कहीं पे डिस्ट्रैक्ट होता नहीं है, हमारा माइंड कहीं पे जाता नहीं है। ओनली वॉट एवर we are watching or observing only in the painting, we are getting all the things. Means a simple person can understand the paintings of Europe. यूरोपियन पेंटिंग्स को हम लोग सिंपल, जो वी आर नॉट द पेंटर्स, बट तो भी हमें समझ में आएगी कि ये पेंटिंग कैसी है। चाइना की पेंटिंग वैसी होती नहीं है। नेक्स्ट राइटर यहाँ पे बोल रहा है, देखो, he wants the viewer to enter his mind and the Chinese painter does not want him to do so. जो यूरोपियन पेंटर होता है उसका they are borrowed our eyes, but the Chinese painter doesn't have such a we can say that intention. उनका वैसा कुछ इंटेंशन नहीं होता है। वो पेंटिंग ड्रॉ करते हैं, उसमें इमेजिनेशन तो होना ही चाहिए। एंड जो यूरोपियन पेंटर है वो हमारी आईज बोरो करते हैं एंड चाइनीज पेंटर्स आर बोरोइंग आवर माइंड्स। वो हमारे माइंड को ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग सोच में पड़ जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, बराबर कि नहीं। तो ये जो है ये डिफरेंस हुआ, दैट यूरोपियन पेंटर्स आर बोरोइंग आवर आईज एंड चाइनीज पेंटर्स आर टेकिंग अवे आवर माइंड्स। ये याद रखना है। नेक्स्ट, द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। राइट है, लैंडस्केप जो है उसको समझना बहुत ही, वी कैन से दैट, एक सपोज लैंडस्केप है, एक विलेज का ड्रॉ किया हुआ है, तो उसको देख के हमें ऐसी फीलिंग आती है, रियली कैसा विलेज होना चाहिए, ऐसी रिवर होनी चाहिए, वो जो लेडी पानी लेके जा रही है वैसा कुछ सीनेरियोज रियल में होना चाहिए, वैसी लाइफ हमें जीनी है, हमें एक फीलिंग आएगी। वो वही तुम्हारी यूरोपियन पेंटिंग स्पिरिचुअल होता है, उसमें कुछ स्पिरिचुअल कंसेप्ट भी होती है और कंसेप्चुअल स्पेस भी होती है। कंसेप्चुअल स्पेस में जो हम लोगों को वहाँ पे कुछ आइडियाज देखने को मिलती है, कुछ आइडियाज सोचते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कुछ नया काम करते हैं। ये हुआ यूरोपियन पेंटिंग्स का। चाइनीज पेंटिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज, अभी देखो ये जो कंसेप्ट मैंने तुम लोगों को बताया कि व्हाट इज द चाइनाज पेंटिंग एंड यूरोपियन पेंटिंग, तो उसके बारे में राइटर ने एक कंसेप्ट बताया है जिसके बारे में हम लोग भी पढ़ते हैं। देखो, दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शैन शुई, which literally means mountain water. Used together, they represent the word landscape. अभी landscape means it is a very auspicious word. It is related with the word shanshui. Shanshui means mountain water. shanshui का मीनिंग होता है mountain water. और यहाँ पे उन दोनों को कंसेप्ट को मिला के जो पेंटिंग बनती है उसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। द माउंटेन इज यंग, मैं रीड करती हूँ बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। द माउंटेन इज यंग while the water is in. The interaction of yin and yang is a fundamental notion of the Taoism. There is a third essential element also, the middle void, where their interaction takes place. This can be compared with the yogic practice of pranayam, breathe in, retain, breathe out. The suspension of breath is void where meditation occurs. The middle void is essential. Nothing can happen without, hence the wide unpainted space is very important in China's landscape. Listen students, यहाँ पे तुम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से उन लोगों ने बताया है कि the Chinese painting and European paintings have some, we can say that, concepts. और shanshui concepts के थ्रू राइटर ने हमें समझाया। देखो, shanshui means mountain water. इसमें जो माउंटेन है उसको हम लोग बोलेंगे यान, इट इज अ मेल कैरेक्टर, एंड जो वाटर है उसको हम लोग बोलेंगे इन। तो राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि दिस फुल यूनिवर्स इज डिपेंड्स ऑन दिस बोथ कंसेप्ट। ये पूरी दुनिया मेल एंड फीमेल इसके ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि ये लोगों का जब वी कैन से दैट दे आर मीटिंग विथ ईच अदर,
माउंटेन एंड वाटर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो रिवर बनती है, रिवर जो है वो ओशन को मिलती है। सेम वही है, हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दिस टू कैरेक्टर्स ओनली, यान एंड इन। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। दिस इज अ स्पिरिचुअल थिंग। और ये जो यांग कैरेक्टर है इट इज वेरी एक्टिव पार्ट एंड इन इज द डार्क। यान जो है वो ब्राइट है, इन जो है वो डार्क है। मीन्स व्हाट, इट इज इनएक्टिव पार्ट। डार्क का मीनिंग है इनएक्टिव, यानी जो इन जो है इट इज अ फीमेल कैरेक्टर, इट इज वी कैन से दैट डार्क एंड इनएक्टिव, बट वॉट एवर द एक्टिविटीज हु इज द एक्टिव कैरेक्टर, तो यांग। इससे जो पेंटिंग्स बनती है, ऐसी जो व्यू जिसके अंदर दिए हुए हैं, जिसके ऊपर पूरा यूनिवर्स डिपेंड करता है, ऐसी पेंटिंग्स हम लोगों को लैंडस्केप के अंदर दिखाई देती है, उसको हम लोग बोलते हैं दाओज़म। ये जो कंसेप्ट है यांग एंड इन का, इसको हम लोग बोलेंगे दाओज़म। यहाँ पे हमारा एक वॉइड होना चाहिए इंटेंशन कि जिसके अंदर, जैसे तुमको पता है वी आर डूइंग द प्राणायाम, तो प्राणायाम में हम लोगों को हमारे इंटरनल बॉडी के बारे में पता चलता है, हमारे सारे चक्र खुल जाते हैं प्राणायाम करने से। बस यहाँ पे वही दिया हुआ है कि प्राणायाम जो है ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, उसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है। और इसकी वजह से ओके स्टूडेंट्स, हियर व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग दैट वी हैव सम void in Chinese painting. Void means it is an empty space. As I told you that yang and yin are the characters, mountain and water. And you know the another one is that our earth and heaven. Earth and heaven, there is a middle space. It is vacant or void. It is filled with human beings and all the living creatures. You know, जैसे मैं तुमको समझाती हूँ, देखो पेंटिंग जो है, चाइनीज पेंटिंग्स आर गिविंग इम्पोर्टेंट टू वाइट अनपेंटेड स्पेस। सिर्फ वाइट जो है, सिर्फ वाइट, ओनली वाइट, उसको लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसका रीज़न ये है देखो कि एज आई टोल्ड यू, हम लोग योगा करते हैं, वेन एवर वी आर डूइंग योगा और प्राणायाम, देन वी आर ब्रीदिंग इन एंड रेस्टिंग समटाइम, देन ब्रीदिंग आउट। हम लोग सांस लेते हैं, थोड़ी देर अंदर रखते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं। तो सांस लेना और उसको अंदर रखना, तब हम लोग मेडिटेट करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन होता है, तो हमारा ध्यान जो है वो पूरी तरह से हमारा मेडिटेशन होता है। फिर सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो लेना, अंदर रखना और छोड़ना, तो लेना और छोड़ना के बीच में जो सांस अपने अंदर रखते हैं उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और वहाँ पे राइटर ने ऐसे बताया है कि चाइनीज पेंटिंग में इसका इम्पोर्टेंस बहुत है कि ह्यूमन बींग्स आर रिसाइडिंग बिटवीन द स्पेस मेड बाय अर्थ एंड हेवन। अर्थ और हेवन के बीच में जो भी वैकेंट स्पेस है, जिसको हम लोग वॉइड बोलते हैं, उसको हमने फिलअप किया हुआ है। ऑल द लिविंग क्रिएचर्स आर रिसाइडिंग देयर। तो उसका इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से ये अर्थ जो है वो टिकी हुई है, हमारा एग्जिस्टेंस इसके ऊपर है। मीन्स अभी तुम लोग बोले मैम आपने ये सब क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, तो इसका मीनिंग ये है कि जो एम्प्टी स्पेस होती है, वैक्यूम जिसको हम लोग बोलते हैं, ओके, तो ऐसी जगह का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता ही है जो चाइनीज पेंटिंग है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। देखो आगे यहाँ पे दिया हुआ है, मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल इन दिस स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। ही बिकम्स द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ यूनिवर्स। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, अर्थ और हेवन का कम्युनिकेशन हमारी वजह से होता है, बिकॉज वी आर द लिविंग बीइंग्स एंड हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल। ही इज द आई ऑफ द लैंडस्केप। और लैंडस्केप अगर हम लोग सपोज पूरी दुनिया का, यूनिवर्स का बनाए, तो हु इज द आई? अवर्स। हम लोग उसके आए हैं, क्योंकि हमारे बिना उनका जो भी कम्युनिकेशन है अर्थ और हेवन का, पॉसिबल ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह से बताया हुआ है। फिर आगे देखते देखो, उन्होंने कुछ पेंटिंग के बारे में ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फ्रेंच पेंटर जीन डफट फर्स्ट क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ आर्ट बर्ड। आर्ट बर्ड मीन्स रॉ आर्ट। आर्ट बर्ड का मीनिंग होता है रॉ आर्ट। अभी रॉ आर्ट का मीनिंग क्या देखो, इन द ईयर 1940s then the art of the untrained visionary was the minority interest. The outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in international modern art. This particular type of work is the creation of those who have no right to be artists, as they have received no formal training, yet they show talent and artistic insight. यहाँ पे ऐसे बताया हुआ है, देखो एक फ्रेंच पेंटर है जिसका नाम है जीन टफट। उसने एक आर्ट ब्रेड कंसेप्ट लाया वो 1940s में, जिसका मीनिंग होता है रॉ आर्ट।
उसको हम लोग आउटसाइडर आर्ट भी बोलेंगे. इट मीन्स व्हाट? दोज हु आर नॉट प्रोफेशनल, लिसन, दोज हु आर नॉट प्रोफेशनल इन पेंटिंग, देन ऑल्सो दे आर ड्रॉइंग द पेंटिंग्स. दिस इज कॉल्ड आउटसाइडर आर्ट. हमारे जैसे लोग भी पेंटिंग करते ही है ना, ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ ना कुछ तो हम लोग ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड आर्ट, ड्रॉ आर्ट. हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता है पेंटिंग का, पर हम लोग बना सकते हैं, उसको बोलते हैं आउटसाइडर आर्ट. तो ये जो आर्ट है ये इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट में बहुत ही फेमस हुआ, क्योंकि जिसको जिसको कुछ लगा उस वक्त उन्होंने पेंटिंग की, उसको हम लोग बोलेंगे आउटसाइडर आर्ट. और ये जो कंसेप्ट है वो हम लोगों का क्या बताता है? इनर टैलेंट बताता है. हमारे अंदर का आर्टिस्ट बाहर आता है जब हम लोग ऐसे पेंटिंग करते हैं, है ना. तो यहाँ पे उसको ये जो फ्रेंच पेंटर है जीन डफेट, उसने उसको नाम दिया है आउटसाइडर आर्ट. फिर आगे दिया हुआ है, देखो, द वर्क ऑफ 80-year-old नेक चांद in India's biggest contribution to outsider art, he has made a garden sculpted with stone and recycled material. It is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि एक आर्टिस्ट था 80 years old, उसका नाम था नेक चांद. उसने आउटसाइडर आर्ट को कंट्रीब्यूट किया. अभी क्या आउटसाइडर आर्ट मीन्स व्हाट? उसने क्या किया, चंडीगढ़ के अंदर जो पत्थर को कौन देखता है? स्टोन्स. उसने उसको शेप किया और उसको ये अंदर जो भी चीजें यूज हुई, जो रिसाइकल्ड थी, कुछ भी नया मंगवाया नहीं गया, जो भी ओल्ड चीजें थी उससे उसने रिसाइकल करके एक गार्डन बनाया, जिसको चंडीगढ़ का रॉक गार्डन के नाम से वो फेमस हुआ. मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आउटसाइडर आर्ट. इट इज मेड बाय नेक चांद. देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर भी उसका पिक्चर आई थिंक दिया हुआ है. दिस इज द, आई थिंक तुम लोग यहाँ पे घूम के भी आए होंगे. ये जो है तुम लोगों को यहाँ पे पिक्चर में जो भी दिख रहा है, दिस इज जस्ट द स्टोन्स, दे आर यूज स्टोन्स. उसको शेप किया और उसके ऊपर ये राउंड जो भी तुम लोगों को दिख रहा है, उसने ये सारे रिसाइकल्ड मटेरियल का यूज करके ये जो पेंटिंग है ये बनाया है. फिर आगे देखो, मीन्स व्हाट? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आउटसाइडर आर्ट. आगे दिया है देखो, द रिसेंटली he has made the garden sculpted with stone and recycled material. It is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. The recently released 15th Scene Spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in the outsider art publication, features Nek Chand. Nek Chand ko and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover. उसने एक मैगजीन जो है उसको पब्लिश किया था, जिसके अंदर उसने ये यूके ने भी उसको अवार्ड दिया और उसको वहाँ पे ये जो रॉक गार्डन है उसका पिक्चर वीमेन के साथ, वीमेन उनके पीछे वाटरफॉल है, वीमेन ने एक वाटरफॉल ड्रॉ किया था. वहाँ पे नेक चांद का ये जो आउटसाइडर आर्ट है उसके एनिवर्सरी पे वो कवर पे उन्होंने वो प्रिंट किया था. सो हिज आर्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम. यानी उसने खुद ने अकेले ने बनाया था, जो उसका ड्रीम था कि मैं कुछ नया बनाऊं. तो उसने टेस्टिमोनी का मीनिंग होता है एग्जाम्पल. दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल रखा कि अ सिंगल पर्सन ऑफ 80 years old कैन मेक दिस टाइप ऑफ आर्ट. कि एक सिंगल 80 years old यानी कितना एजेड पर्सन वो ऐसे कुछ आइडिया बना सकता है, ये उसने दुनिया के सामने एग्जाम्पल रखा. द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ 5-month इंटरैक्टिव शो ऑफ हिज वर्क. जो स्विस कमीशन था यानी यूनेस्को ने उसको ऑनर किया 5 month के लिए, उसके जो भी शो थे उसके वर्क्स के बारे में लोगों को बताया. एंड नेक चांद सेज दैट वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड वॉचिंग पीपल एंजॉय हिज क्रिएशन इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर हिम. और उसके अंदर उसने ये बताया कि उसने जो भी चीज़ें बनाई, जो भी गार्डन उसने बनाया, काफ़ी लोगों ने वो गार्डन के देख के उसके अंदर एंजॉय किया. तो दिस इज बेस्ट अवार्ड, वो उसका सबसे बड़ा अवार्ड है. व्हाई? बिकॉज यू नो सेटिस्फैक्शन इज द बेस्ट अवार्ड ऑफ अस. हम लोगों को जो भी सेटिस्फैक्शन मिलता है हमारा काम देख के, जो भी हम लोगों को लोग खुश होते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं, दिस इज द बिगेस्ट अवार्ड. वो हम लोगों का क्या होता है? बिगेस्ट अवार्ड होता है. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ गाइस. आई थिंक तुमको समझ में आया होगा. ये चैप्टर के अंदर व्हाट वी हैव सीन इज दैट the difference between Chinese and European paintings, and I explained very means we can say that clearly in that Chinese paintings are made on the base of fantasies,
while the European paintings are the realistic one. Whatever means in European paintings we are getting the starting point and ending point, and in Chinese painting we are just roaming in the painting. We are not getting in a proper view or whatever we are saying. So students, here I know that you are getting bored in that and you are having lot of confusion in this chapter, but we don't have any option. You have to read the chapter, you have to read it very nicely. In your textbook that getting inside outsider art and नेक चार्म it is given. So थोड़ा टाइम है तो मैं तुमको ये बता देती हूँ. देखो, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. When French painter Jean Duffert mooted the concept of art but in 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. From its almost well beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in the contemporary art. This genre is described as the art of those who have to write to be artists as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. यहाँ पे आउटसाइडर आर्ट के बोला हुआ है, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि फॉर आउटसाइडर आर्ट देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग. हमको इसमें कोई भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होती है. वी कैन इजीली ड्रॉ द पेंटिंग. उसका एक एग्जाम्पल नेक चांद ने बनाया है, जो इसने रॉक गार्डन बनाया चंडीगढ़ में. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल द नेक चांद हैज शोन. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द लैंडस्केप ऑफ द सोल. लैंडस्केप ऑफ द सोल का मीनिंग ये हुआ कि ऐसी पेंटिंग्स जिसका हमारे लिए कुछ स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस होता है. चाइनीज पेंटिंग, यूरोपियन पेंटिंग्स के व्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं. अभी स्टूडेंट तुम्हारा वर्क स्टार्ट होता है. जैसे कि इसके अंदर तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, तो व्हाट यू हैव टू राइट. इसके अंदर तुम लोगों को लिखना है. देखो मैं बोलती हूँ, सब लोग ध्यान देंगे. अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज. ये 3 टॉपिक तुम लोगों को यहाँ पे लिखने हैं. अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट एंड थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, क्योंकि एग्जाम में इसमें से ही तुमको आएगा. तो इसके साथ ज़्यादा मैं तुमको बोर नहीं करूँगी. यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. बाय.